اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام یظہر من غیر واحد منہم فی بعض العقود کبیع لبن الشاة مدتاً وغیر ذالک کون التملیک المطلق عام من البیع. بس صاحب تو ان سے لے لیجئے گا، آج ہی بولیے گا نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ فائل آپ کی مکمل رہے. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها انها مفیدۃ لاباحۃ التصرف الی آخرہ. اپنا جو ہے وہ موبائل آپ تیار رکھا، کسی کا گڑبڑ ہو نہ ہو، آپ کا مگر گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. چونکہ آپ کے موبائل پہ بہت سے لوگوں کے اعمال ٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، منحصر ہیں. وہی کہہ رہے ہیں، اس لیے جو اپنا موبائل تیار رکھا کیجیے، ہر وقت چارج میں جائے کہ اس کا میراث جو ہے وہ 3-4 جلسہ ہوا تھا اور بڑا زبردست چل رہا تھا. وقت ہوتا تو آپ لوگ بھی شریک ہوتے، مزہ آتا. آپ لوگ اس طریقے سے میراث کی بحث چل رہی تھی، مجھے خود لطف آ رہا تھا، میں مطالعہ کرتا تھا، دیکھتا تھا اور مزہ لے کے پڑھا رہا تھا میں. اور انہوں نے شروعاتی 1-2 بحث ڈالی، کیا نام ہے، یوٹیوب پہ انور صاحب نے ہم سے بتایا بھی، ڈال دیا ہے. اور یہ تھا کہ ہر ہفتے اب اس ہفتے کی بحث جو ڈالتے رہیں گے، اپلوڈ کرتے رہیں گے. معاملہ بھی رک گیا. ویڈیو بنا دیتے ہیں؟ نہیں، آڈیو کا یوٹیوب اب جس پہ بھی ڈالتے ہوں کہہ رہے تھے ڈالتے ہیں پہ. کیوں آڈیو پڑھتے ہیں یوٹیوب پہ؟ میں نے خود سنا نہیں آڈیو، میں نے خود بھی دیکھا یوٹیوب پہ آڈیو چلتی ہے. تو انہوں نے البتہ مجھے یاد نہیں کہ یوٹیوب کا ہے کیا کہا، اگر کہا اپلوڈ کر دیا نیٹ پہ کر سکتے ہیں. ہاں، تو انہوں بہرحال پتہ نہیں ہو سکتا ہے یوٹیوب میں کچھ اور کا ہو، وہ بتانے لگے کہ ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. البتہ ہم نے چیک نہیں کیا اس کو ابھی تک. کہنے لگے کہ درس میراث استاد شبیر حسینی اردو ڈال کے، یا درس کتاب شرح العلوم میراث اردو ڈالیں گے تب بھی وہ آ جائے گا. اردو ڈال دیا اس کے اوپر تو وہ معاملہ آ گیا. خیر، ورنہ کم سے کم ایک کتاب تو آئی گئی ہوتی اب تک لوگوں کے مرعا اور مسمع میں اردو میں. ہاں، تو حضرات، گفتگو ہم لوگوں کی آخری جلسے میں، لاسٹ کلاس میں، پچھلے جلسے میں، پچھلے درس میں مواطات کے سلسلے سے شروع ہو چکی ہے. مواطات کی انہوں نے تعریف جو کی، مواطات کا 2 مفہوم بیان کیا، اور اس کے بعد ان دونوں مفہوموں کے بعد 2 ایسے مفہوم بیان کیے جس کو یہ قبول نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مواطات، جیسا کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، تفسیر کی ہے، وہ کیا ہے کہ 2 افراد میں سے ہر ایک اپنے مد مقابل کو کوئی چیز دے اور اس سے کوئی چیز لے. اب یہ اعطاء طرفینی جو ہے، یہ اعطاء طرفینی 2 صورت میں، 2 شکل میں قابل تصور ہے، متصور ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے والے کو دے، ٹھیک ہے، عطا کرے. کس چیز کے لیے؟ ان یبیحا، تاکہ اس کے لیے مباح بنا دے تصرف کو. ایک دوسرے کو دے رہا ہے کوئی چیز اور اباحِ تصرف کر رہا ہے. ہم نے آپ کو کچھ دیا، آپ نے ہمیں کچھ دیا، دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اباحِ تصرف کر دیا. یہ ہے مواطات. ملکیت پہ نظر نہیں ہے، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، آپ ہم کو یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری نظر ملکیت پہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرف چیزیں منتقل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے استعمال جو مباح قرار دے رہے ہیں، تصرف ہوا قرار دے رہے ہیں. ایک مواطات کا تصور یہ ہے. مواطات کا دوسرا تصور یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک سامان، آپ ہمیں ایک سامان دے رہے ہیں مگر برسبیل تملیک، یعنی ہماری نظر تملیک پہ بھی ہے. ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں اپنے مال کا، آپ ہمیں، یہ ہے. تو مواطات میں اعطاء طرفینی تو ہے،
ہے نا, دونوں طرف سے دیا جا رہا ہے. بس مفہوم دو ہے. پہلے مفہوم میں یہ ہے کہ اباحہ تصرف مورد نظر ہے, تملیک سے قطع نظر. دوسرے والے مفہوم میں تملیک ہے. اب ظاہر تملیک ہوگی تو تصرف تو خود بخود آ ہی جائے گا. یہ دو مفہوم ایسے تھے کہ جو مواطات میں چھپے ہوئے ہیں, لیکن دو مفہوم اور بھی پیش کیے گئے, جن دونوں مفہوموں کو جو ہے وہ شیخ انصاری نے کاٹ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ تیسرا مفہوم کہ ان میں سے ہر ایک مال کو منتقل کرے دوسرے کی طرف, مگر نہ بیع کا قصد ہو اور نہ جس معنی کو ہم نے اباحہ تصرف کو اوپر ذکر کیا ہے اس کا قصد کرے. بس ایک چیز دے, اس کے مقابلے میں دوسری چیز لے لے. مواطات میں بیع کا تصور رہتا ہے, بیع مواطات بولتے ہیں اسے, اس کو ہے نا, اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جاتا. اصطلاح کیا کہا جاتا ہے مواطات کو؟ بیع کہا جاتا ہے. یعنی ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں, معاملے بیعیہ کر رہے ہیں, ہے نا. یہاں بیع نہیں ہے, ایک چیز دے رہا دوسری لے رہا ہے بغیر قصد کیے ہوئے بیع کا. ٹھیک, اس کو انہوں نے کہا کہ ایک چیز دینا دوسری چیز لینا اس کے وقت بدلے میں, یہ بیع کی تعریف میں ہے. مبادلۃ مال بمال یا انشاء تملیک عین بمال, یہ جو مفہوم ہے نا, ہم دے رہے ہیں اور آپ سے کچھ لے رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بیع سول فلانا دھماکہ یہ سب کوئی تصور لائے نہیں, خالی ایسی دے دیں لے لیں. ان میں سے, ان معانی میں سے کوئی نہ کوئی معنی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. یہ صرف اور صرف دینا اور لینا کیا ہوتا ہے بغیر قصد بیع؟ کچھ تو قصد کرنا پڑے گا آپ کو نا. بغیر قصد کے یہ اعطاء طرف ہے نہیں, قابل تصور نہیں ہے. اس کو انہوں نے کاٹ دیا. چوتھا معنی کیا تھا؟ چوتھا مفہوم کیا تھا؟ کیا یقصد الملک المطلق, یقصد الملک المطلق, ارادہ کیا جائے ملک مطلق کا, نہ کہ خصوص بیع. ٹھیک ہے, وہاں اوپر والے و نیچے میں فرق یہ کہ وہاں اباحے کا وہ تھا, ارادہ تھا. ان یقع نقل, نقل واقع ہو رہی ہے من غیر نہ بیع کا تصور تھا اور نہ اباحہ تصرف کا. ان یقع, یہ تیسرے والے میں ان یقع نقل من غیر قصد البیع ولا تصریح بالاباحۃ المذکورہ, نہ بیع کا تصور ہے اور نہ, جیسے میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اباحہ اوپر ذکر کیا اس اباحہ کی تصریح ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک چیز دی جائے دوسری جا رہی ہے. چوتھے والے میں کیا ہے؟ ان یقصد الملک المطلق, ملک مطلق کا قصد کیا جا رہا ہے من دون خصوص البیع, خاص کر بیع. تملیک تو ہو رہی ہے لیکن بیع کا خصوصاً خاص کر بیع کا قصد نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں ان دونوں کے جواب میں, پہلے والے جواب میں کہتے ہیں کہ ممتنع ہے کہ یہ واقع جو ہے یہ خالی رہے عناوین بیع یا اباحہ یا عاریہ وغیرہ میں سے کسی ایک عنوان سے. ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. دوسرے والے میں والی بات کہہ رہے ہیں, یہ میں نے دونوں چیز دونوں ساتھ بول دیا تھا, ملا دیا تھا. دوسرے والے جو بیع ملک مطلق کی جو گفتگو تھی اس کی رد میں یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ تعریف بیع میں یہ بات گزر چکی ہے, انشاء تملیک عین بمال ہے, انشاء تملیک عین بمال, کہ من ان التملیک بالعوض علی وجہ مبادلۃ ہوا مفہوم البیع, ہے نا, کہ تملیک کرنا, تملیک بالعوض کرنا برسبیل مبادلہ, یہ کس کا مفہوم ہے؟ بیع کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں آپ سے لے رہے ہیں, تملیک کر رہے ہیں, لیکن بیع کا تصور نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے میں عنوان خاص کی نفی ہو رہی تھی, اس کو کاٹا, کہا کہ بغیر عنوان خاص کے, بغیر اباحے, بغیر عاریہ, بغیر ودیعہ, بغیر بیع کے یہ نقل و انتقال کا کیا مطلب ہے. دوسرے والے میں بیع کی مخالفت ہو رہی تھی, نقل مطلق کر رہے ہیں, ملک مطلق, ملک ان تملیک کر رہے ہیں مگر بیع کا وہاں پر وہ نہیں لا رہے ہیں, نام نہیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرماتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو دیا
उसके बदले में आपसे कुछ लिया, हमने आपको मालिक बनाया, आपने हमको मालिक बनाया। ये चीज जो है किसमें छुपी हुई है, किसकी तारीफ में? हाँ, मुबादले तो माल बेमाल, या इन तमलीक के ऐन बेमाल बेवस, ये बै की तारीफ में छुपा हुआ है। ठीक है, ये मफहूम बै है, ना कि गैर बै। हाँ, अब हो सकता है कोई ये कहे कि मुतलक जो हमने कहा है ना, ये आज का दर्स यहाँ से शुरू होगा, पिछला दर्स यहीं पे रुका था कि बस तमलीक, ठीक है, या तमलीक बिल बै है ना, या तमलीक बेसूरत मुतलक है। तमलीक मुतलक जो उन्होंने कहा, मुतलक का क्या मतलब हो गया? आम। मुतलक मतलब हो गया आम, मिनल बै व गैरही। मुतलक उस वक्त होगा, आपने कहा हैवान, ये किसको शामिल कर रहा है? इंसान और गैर इंसान, गैर इंसान मसलन जानवर को, है ना, बकरी को। तो मुतलक जो है इसके अलावा किसी को शामिल करता है। यहां कह रहे हैं कि मिल्क मुतलक, तो एक मिल्क इसके जरिए से आती है, बै के जरिए से। मिल्क मुतलक जब आप कहेंगे तो बै बे आला बै बै, बै वा बेला बै बै, बै हो कुछ और हो। तो एक साहब तौजीह में आए इस बात की, मिल्क मुतलक वाले नजरिए की तौजीह में उन्होंने कहा कि मिल्क मुतलक कहा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बै हो और गैर बै भी, उसमें भी तमलीक हो सकती है। बै में क्या होता है मौलाना, आप बताइए, बै में क्या होता है आमतौर पे? मुबादला तो माल बेमाल। हम आपको ये दे रहे हैं, इसके मुकाबले में ये ले रहे हैं, है ना। और एक तमलीक ऐसे होती है कि पैसा कुछ लिया आपसे, है, इन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया, इनके पास एक बकरी थी, कहा कि बकरी के थन में 1 महीने तक जितना भी दूध निकलेगा वो हम आपको बेच रहे हैं, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मुर्गी है के पास मुर्गा है, मुर्गा तो अंडा देता नहीं, जितना भी अंडा देगी मुर्गा को मुर्गी किया तो अंडा नहीं हो गया। क्या बात है, अतः 5 साल के बाद मुर्गी है। इन्होंने बकरी फिर भी ठीक थी, आगे से बदल लीजिए, ये बकरी ले लो, ठीक है, खैर ऐसी मजाक लीजिएगा। हसन अब्बास साहब पास मान लीजिए मुर्गी है, इन्होंने बेचा। आप मिसाल को कुछ सीरियस ले रहे हैं, मुझे भी ऐसे आता है। तो ये कहा गया कि भाई, उन्होंने कहा कि आप सब 100 रुपए ले रहे हैं, इस 6 महीने में रिटर्न मिल रहा होगा उसको, आप खाए, ठीक है। तो ये बताइए, ये जो बै की इस्तिलाही तारीफ मुबादला माल बेमाल हो रहा है, माल पता ही नहीं क्या है, बै में मुशक्कस होना चाहिए ना कि क्या दे रहे हैं, तो पता ही नहीं क्या है। हो सकता है कि अंदाजा हो सकता है 10 अंडा देते, मुझे नहीं मालूम कितना दे सकती है मैक्सिमम 6 महीने में, है कि नहीं। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पर बै पूरे तौर से सादिक नहीं आ रही है, उन्होंने बै सादिक नहीं आ रहा है ना। बकरी के थन में दूध जो बेच दिया 1 महीने के लिए, पता नहीं कितना हो, मुशक्कस ही नहीं हो, हम अभी मालूम है जिन्हें क्या है, तब तो बै होगा। मगर ये तमलीक हो रही है, इसका मतलब बै नहीं है। कहना हो सकता है मिल्क मुतलक से मुराद ये हो, तो ये मिल्क मुतलक जब होगा इस तरीके से, तो ये आम हो जाएगा किससे?
آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں آج کے درس کی. نعم یظہر من غیر واحد منہم، ایک سے زیادہ علماء کی عبارت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے فی بعض العقود، بعض عقود میں، جیسے لبن شات ایک مدت کے لیے بیچ دینا، یا غیر ذالک مثلا مرغی کے انڈوں کو بیچ دینا، ہے نا، کچھ عرصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے. اس طرح کی جو بیع ہوتی ہے، اس طرح کے جو عقود ہوتے ہیں، اس طرح کے جو عقود ہوتے ہیں، ہے نا، اس میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یظہروں کا فاعل کیا ہے؟ کونو. بعض علماء کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کونو تملیک مطلق عام من البیع. تملیک مطلق جو کیا ہے؟ عام من البیع ہے. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها. اب ایک نئی بحث آ گئی، وہ ختم ہو گیا، وہ بات ختم. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری بات پیش کر رہے ہیں. یہ جو مواطات ہے نا، یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مواطات تو سمجھ میں آ گیا کہ اعطائے طرفینی ہے. اب علماء نے اختلاف کیا ہے مواطات کے مصداق کو لے کر کے، مصداق کلی کو لے کر کے. کیا؟ ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، حکم مواطات، حکم ہے حکم مواطات، مواطات کے حکم کے سلسلے سے ہمارے علماء کے درمیان جو چیز معروف ہے وہ کیا ہے کہ انہا مفیدۃ لاباحۃ التصرف. مواطات کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ اباحۃ تصرف کا. ہم نے یہ آپ کو دے دیا، آپ نے ہم کو دے دیا، اعطاء طرفینی ہو گیا. آپ نے میرے لیے مباح کر دیا ہے اس کا تصرف، اور میں نے آپ کے لیے مباح کر دیا ہے اس کا تصرف. اباحۃ تصرف. وَيَحْصُلُ، اچھا اب مان لیجئے یہ ہمارے پاس سے وہ ہو گیا. اباحۃ تصرف کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف اباحۃ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ہم چاہیں گے آپ سے یہ لے سکتے ہیں، جب آپ چاہیں گے یہ لے سکتے ہیں ہم سے، ہے نا. اباحۃ تصرف اگر خالی ہو رہا ہے تو ہم یہ واپس لے سکتے ہیں، آپ یہ ہم سے واپس لے سکتے ہیں. لیکن اس بیچ یہ ہم سے تلف ہو گیا، جو آپ نے اس کے بدلے میں دیا تھا مجھے، وہ ہم سے تلف ہو گیا. ٹھیک ہے، خط برباد ہو گیا، مٹ گیا، خراب ہو گیا. تو اب اس صورت میں یہ چیز جو ابھی تک متزلزل شکل میں تھی، آپ ہم سے لے سکتے، وہاں سے لے سکتے تھے، لازم نہیں بھی تھی، یہ بیع متزلزل تھی، ختم بھی ہو سکتی تھی. آپ واپس لے لیتے، بیع ختم ہو گئی، یہ ہم نے لے لیا، یہ میرا ہو گیا. لیکن جب یہ ہم سے تلف ہو گیا تب یہ ملک لازم ہو گیا. ملک لازم تو سمجھ میں آیا؟ اب ہمارے لیے جائز نہیں اس کو آپ سے واپس لیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مال تو ہم نے تلف کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو مواطات میں کیا ہوتا ہے؟ اباحہ تصرف ہوتا ہے. کب تک؟ وَيَحْصُلُ، جب تک کہ تلف نہ ہو طرف ایک طرف. وَيَحْصُلُ الْمِلْكُ بِطَلَفِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، عینین میں سے اگر ایک جو تلف ہو جاتا ہے تو پھر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. اب اباحہ تصرف نہیں ہے، کیا ہے؟ اب ملکیت آ گئی ہے. ٹھیک ہے. وعن المفید وبعض عامہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء عامہ نے یہ کہا ہے، کیا؟ القول بکونھا لازمۃ کالبیع. نہیں، مواطات جو ہے نا وہ بیع کے طریقے سے کیا ہے؟ لازم ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے اس قلم کو اس کے بدلے میں خریدا ہے نا آپ سے، ہے تو بیع لازم ہے. یہ آپ کا یہ میرا ہو گیا، سوری یہ آپ کا ہو گیا، اس کے بدلے میں نے یہ قلم خریدا ہے، یہ آپ کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، بیع لازم ہے. یہ شیخ مفید اور عامہ بعض اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ جیسے بیع ہوتی ہے لازم، ویسے بیع مواطات بھی لازم، بیع ہی ہے. یہ جیسے عقد کے ساتھ ہوتی ہے بیع اور اشتراط والی بیع، بس یہ بھی ہے. وہاں مل کے لازم ہے، یہاں بھی مل کے لازم ہے. لیکن علامہ اس کے برعکس کہتے ہیں. علامہ نے تو بالکل ہی پلٹ دیا معاملے کو. ابھی تک دو گروہ سامنے آیا. شیخ مفید والا گروہ کیا کہتا ہے؟ ملک ہے، بیع اور اشتراطوں کی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، مواطات میں بھی. یہ مال آپ کا ہو گیا، میرا ہو گیا. اکثریت کیا کہتی ہے ہماری؟ اکثریت کیا کہتی ہے ہماری؟ کیا ہے اکثریت؟ کیا کہتی ہے؟
इबाह तसर्रुफ इन्नल मारूफ बैन उलमाइना, इबाह तसर्रुफ तो बोलिए ना, ये तो पूछ रहा हूँ 1 घंटे से, बोल क्यों नहीं रहे? इबाह तसर्रुफ की कायल है अक्सरियत हमारी, मारूफ बैन उलमाइना सिर्फ इबाह तसर्रुफ, ये हमने आपके लिए हलाल कर दिया इस्तेमाल इसका, आपने इसको मेरे लिए हलाल कर दिया, बस इबाह तसर्रुफ हुआ है। शेख मुफीद अब्बास अम्मा क्या कहते हैं? इबाह तसर्रुफ नहीं है खाली, बल्कि मिल के लाजिम है, जब मिल को रहा तो इबाह तसर्रुफ तो बदर जौला रहेगा। लेकिन अल्लामा निहाया में ये फरमाते हैं कि नहीं, बे फासिद है। क्या है? बे फासिद है। अल्लामा फिन निहाया एहतिमाल कौनिहा बयान फासिदन फी अदम इफादतिहा लिइबाहत तसर्रुफ। जब बे फासिद हो जाती तो तसर्रुफ सही नहीं होता ना, तो इसके अदम इबाह तसर्रुफ के लिए, अदम इफादा इबाह तसर्रुफ के लिए हम इस बात का एहतिमाल दे सकते हैं कि क्या है? बे फासिद है। एहतिमाल कौनिहा, इस चीज का एहतिमाल कि ये जो मुआतात है नहीं, फासिद का नहीं, शिकारे बेकार है, ला हासिल बेफायदा है, ये मुआतात का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये बे फासिद के तरीके से है। बे जैसे बे में कोई शर्त अगर मुहक्कक ना हो तो बे फासिद होती है ना, है ना, तो बे तसर्रुफ भी नहीं आता, वैसे ही यहाँ पे भी है, ये बे तसर्रुफ तक का फायदा नहीं देती है, ये बे फासिद के तरीके से है ये। वला बुद्दा अव्वलन, तो 3 नजरिए सामने आ गए, एक अल्लामा का, एक मुफीद रहमतुल्लाह अलैह का, एक मशहूर उलमा का, उलमा शिया। वला बुद्दा अव्वलन, अब कहते हैं कि मुआतात की लंबी चौड़ी बहस करेंगे और शायद ये पूरा दिन मुआतात की बहस में निकल जाए हमारा, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम ये देखें कि मुआतात में जो झगड़ा है, कौन से मुआतात में झगड़ा है। मुआतात 2 तरीके का हुआ ना, एक वो मुआतात जो इबाह तसर्रुफ का काम करता है, और एक वो मुआतात जी जो आप सही बोलते मगर धीरे बोलते, जोर बोला कीजिए, शर्माया मत कीजिए, ठीक है। और एक वो कि जो मौलाना दारी साहब क्या फरमाया आपने, तमलीग का फायदा कर देता है, ठीक है। झगड़ा मोर्द निज़ा क्या है, कौन सा मुआतात फासिद है या सही है? कहा ना मुआतात सही नहीं है, एहतिमाल तो एहतिमाल क्या नाम है, एहतिमाल कौन है बयान फासिद है, जो भी हो, बहरहाल अगर मुआतात के जो अहकाम हैं या मुआतात में जो निज़ा है कि सही है या फासिद है, इस तरह की चीजें हो रही, कौन से मुआतात के लिए हो रही हैं? उस मुआतात के लिए, मुआतात का 2 मफ़हूम हुआ मौलाना, एक वो मुआतात के जो इबाह तसर्रुफ का माना अपने अंदर रखता है, और एक वो मुआतात जो तबलीग की तरफ नाज़िर है। तो मोर्द निज़ा कौन सा मुआतात है? वला बुद्दा वलन मिन मुलाहिज़ते, जरूरी है कि मुलाहिज़ा करें कि अन्ना निज़ा फिल मुआतात अल मक़सूद बिहल इबाहा मिन मुलाहिज़ते अन्ना निज़ा फिल मुआतात, मुआतात में जो निज़ा है अल मक़सूद बिहा अल इबाहा, वो वाले मुआतात, वाला मुआतात, ठीक है, कि जिससे इबाहा मुराद है, और फिल मक़सूद, यानी यहाँ भी मक़सूद से पहले अल मुआतात छुपा हुआ है, अल मुआतात अल मक़सूद बिहा तमलीग, ये वो वाला मुआतात मोर्द निज़ा है कि जिससे मुराद क्या है, तमलीग है, ठीक है। ये फिल मुआतात जो है अल मक़सूद बिहल इबाहत का खबर है, और ये औ के जरिए से दूसरा जो है वो अत्फ़ हुआ उसके ऊपर, और अन्ना का इसम जो है वही अन्निज़ा है। सिर्फ अन्नन निज़ा कायम है, इसमें है कि उसमें है, इस वाले मुआतात में या उस वाले मुआतात में? ये सवाल मौलाना सलमान साहब बताइए, इस जुमले में क्या कहा, इस पैराग्राफ छोटे से 1.5 लाइन के? आया मुआतात से मुराद ये तबलीग मुराद है या फिर इबाह वाला, मतलब ये मुआतात मुराद? हाँ, कौन वाला मुआतात? पूरा कहना, मुआतात मत कहें। मुआतात इशारे से वाज़ेह किए इनके लफ्जों को, कहा कि निज़ा पाया जा रहा है कि ये निज़ा जो है मुआतात इबाहा में है या सिर्फ जो है तमलीग में पाया जा रहा है? सिर्फ तमलीग मतलब यानी मकसूद यहाँ पे तमलीग है, तमलीग मिलके लाजिम है। और वाज़ेह कीजिए, और वाज़ेह कीजिए।
कहा कि निज़ा फैज साहब कहाँ हैं? पैर में क्या हो गया आपके? इधर देखिए ना, इतनी मेहनत की जा रही है। कहा कि मुआतात में, हाँ, ये जो आप लोग फरमा रहे हैं सही है। मैं अपने लफ्जों में कह दूं आप दोनों लोगों की बात को कि मुआतात में निज़ा है। ये मुआतात सही है कि नहीं सही है? ये कर सकते नहीं कर सकते हैं? फासिद है बस सही है। तो कौन से मुआतात, कौन सा माना मुआतात का? आया इबाह तसर्रुफ वाला, ये मौरद निज़ा है, तमलीक वाला? यानी मुआतात के जरिए से इबाह तसर्रुफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसमें झगड़ा है। बात कहते हैं हो सकता है, बात कहते नहीं हो सकता। या मुआतात के जरिए से तमलीक हो सकती है, इसमें झगड़ा है। अक्सरियत का नजरिया ये है, ये सही भी है कि मुआतात में वो मुआतात मौरद निज़ा है जो तमलीक को अपने अंदर समेटो। देखिए, हमने इसको आपको दिया, आपने हमको इसको दिया, इबाह तसर्रुफ। भाई हम इसके मालिक थे, आप इसके मालिक थे, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इबाह तसर्रुफ तो कर ही सकते हैं, हैं? इबाह तसर्रुफ में क्या इश्काल है? झगड़ा ये है कि आया इस तरीके से आंख बंद करके या मुंह बंद करके ऐसे, इसमें मालिक बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे हम दोनों एक दूसरे के? झगड़ा इसमें है ना? तो मुआतात जो है, एक मरतबा मुआतात से हम एक दूसरे पे तसर्रुफ करते को मुबाह करते हैं, इसका तसर्रुफ वाली चीज झगड़े में नहीं है, झगड़े वाली नहीं है। इबाह तसर्रुफ तो हो ही जाएगा। उनकी मर्जी तो समझ में आ रही है ना मुआतात से कम रज़ायत तो समझ में आ रही है ना रज़ायत तरफ़ैन तसर्रुफ के लिए। बहस ये है कि आया इस तरीके से गूंगे बहरे बन करके तमलीक भी कर सकते हैं दूसरे को? ये है मौरद निज़ा। असल झगड़ा इसमें है कि क्या मिल्कियत आएगी नहीं आएगी। फरमाते हैं वज़ाहिर मिनल ख़ासते वल आम्मते वल माना सानी, सुन्नी और शिया दोनों की इबारतों से जो चीज जाहिर है वो क्या है कि मुराद तमलीक ली गई हो, यानी वो मुआतात मौरद निज़ा है जिसमें तमलीक मुराद हो। ठीक है। वह है सो इन्नल हुक्मा, अब आपने ये पढ़ लिया पिछले सफ़े पर, क्या पढ़ा है कि इबाहे तसर्रुफ मुतातियैन इबाहे तसर्रुफ कर रहे हैं, लेकिन जब एक तलफ हो जाए तो क्या हो जाता है? मिल्कियत लाजिमा आ जाती है, मिल्क लाजिम बन जाता है वो तलफ होने के बाद। तलफ होने के पहले मिल्कियत लाजिमा नहीं आ रही है ना? ये चीज जो थी मौक़िफ़ सानी बर्दाश्त नहीं कर पाए किस तरीके से इस बात को कहा जाए कि जब तक ये तलफ नहीं हो रहा है तब तक खाली बाय तसर्रुफ, अगर ये तलफ हो गया तो ये आपके लिए मिल्क लाजिम बन गया। ये क्या तरीका हुआ? यानी मिल्कियत मुनहसिर है तलफ इहदल ऐनैन पर। इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे थे मौक़िफ़ सानी, तो मौक़िफ़ सानी ने ये फरमाया वह सो इन्नल हुक्म बिल इबाहति बिदूनिल मिल्क क़ब्ल तलफ व हुसूलुहु बाद तलफ व हुसूलुहु बादहु ला युजामिउ ज़ाहिरन क़स्द तमलीक मिनल मुतातियैन। ये बताइए हसन अब्बास साहब, मैंने आपको दिया था ये जब, तो मैंने तो आपको मालिक बनाने के इरादे से दिया था, मेरा कस्द क्या था? और आपने जब ये दिया था तब, है ना? तो हम दोनों का मुतातियैन का कस्द क्या था? तमलीक था। और आप ये कह रहे हैं कि ऐसे पे बाय तसर्रुफ हो रहा है, जब एक तरफ हो जाए तब तमलीक हो जाएगी। तो ये हम दोनों के कस्द से साजगारी नहीं रखता आपका ये हुक्म, मुताबिकत नहीं रखता है। तो फरमाते हैं कि चूंकि हुक्म बिल इबाहे का हुक्म बिदूनिल मिल्क, बगैर मिल्क के, क़ब्ल तलफ, तलफ से पहले, व हुसूलुहु और हुसूल मिल्क बाद तलफ, ला युजामिउ ये जमा नहीं हो पाता ज़ाहिरन क़स्द तमलीक मिनल मुतातियैन, दोनों की जो कस्द, जो दोनों का जो इरादे तमलीक था, कस्द तमलीक था, इसके साथ ये मसला जो है ये काबिल जम नहीं है। तो क्या हुआ? नज़्ज़ल, अब ये चाराजोई के लिए आए मौक़िफ़ करकी साहब, नज़्ज़ल मुहक़्क़िक़ुल करकी या मुहक़्क़िक़ुल सानी अल इबाहता फ़ी कलामिहिम अलल मिल्किल जाइज़ अल मुतज़लज़िल। आप लोगों ने लुमा तिजारत पढ़ी है? यहाँ नहीं पढ़ी ना? यहाँ पढ़ा था बहरहाल। तो तिजारत की बहस में बात बताई गई है, मिल्क मुतज़लज़िल एक चीज होती है, ठीक है, और एक जो होती है मिल्क लाजिम। मिल्क लाजिम यह है कि ये आपका हो गया और ये मेरा हो गया, मिल्कियत मुहक्कक हो गई। मिल्क मुतज़लज़िल में किसी चीज की फना या वजूद के ऊपर अभी
इन्हिसार है इस मिल्कियत का। ये मिल्कियत अभी लाजिम नहीं हो रही है जब तक वो चीज मुहक्कक ना हो जाए। मसलन क्या, जो हमारी मिसाल थी इसमें तलफ, अगर तलफ मुहक्कक हो गया इसका तभी मिल्क क्या है, लाजिम बनेगी, वरना इस वक्त तक जो मिल्क अभी मुअल्लक है, मुतज़लज़िल है। मुतज़लज़िल मतलब डगमगा है, ठीक है, मिल्कियत अभी आई नहीं है। ये फरमा रहे हैं मौके कर कि एक तरफ तो दोनों ने इरादा तबलीग का किया है मुतातियन में, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि इबाहे तसर्रुफ सिर्फ आता है मुआतात के जरिए से, एक तलफ हो जाए तब मिल्कियत आती है, तो ये दोनों चीजें काबिल जब नहीं है। तो लिहाजा मुहक्किकीन या मुहक्किक सानी ने इसको इबाहे तसर्रुफ का नाम नहीं दिया है और न मिल्कियत का डायरेक्ट नाम दिया है। इस मुआतात में इन्होंने मिल्क मुतज़लज़िल का नाम दिया है। मतलब क्या हुआ, यानी जब हमने आपसे इसका मामला किया ना, तो हम दोनों चूंकि मुआतातियन क़स्द तबलीग कर रहे हैं, लिहाजा मिल्क हुआ ही है, ये मिल्क हुआ, ये हमारा हुआ आपका, मगर ये मिल्क कौन सा है, मिल्क मुतज़लज़िल है, ठीक। और मिल्क मुतज़लज़िल में शरअन और उर्फन कोई कबाहत नहीं है, ठीक है। तो ये फरमाते हैं कि क्योंकि क़स्द मुतातियन के साथ इबाहे तसर्रुफ वाला और ये जो सूरत बयान की है बाज़ उलमा ने, ठीक है, ये काबिल जम नहीं थी, लिहाजा मैं ये कहता हूं मौके करके क्या, मैं तंजील करता हूं, नाजिल पे मंजिल, इस मामले को नाजिल पे मंजिल तमलीग के मुतज़ल्लिल करता हूं। नज़ला मुहक्किक सानी ने तंजील की है, जो उलमा की इबारत में लफ्ज़ बाहा आया है उसको नाजिल पे मंजिल चीज करार दा दिया, अलल मिल्किल जायज़िल मुतज़ल्लिल, मुतज़ल्लिल गैर लाजिम, ये लाजिम के मुकाबले में आता है गैर लाजिम, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, मुतज़ल्लिल कहते हैं। इन्होंने मिल के जायज़े मुतज़ल्लिल पर हमला किया है। मैंने ऊपर लिखा है, खुद हाशिया बनाया है कि मिल के मुतज़ल्लिल में तरफ़ैन अपनी जिन्स को तरफ मुकाबिल से वापस ले सकते हैं उस वक्त तक जब तक ऐन बाकी है, ठीक है, मगर ऐनैन में से किसी एक ऐन के तलफ होते ही ये मिल्क लाजिम हो जाती है। यह है मिल्क मुतज़ल्लिल का तसव्वुर। मिल्क मुतज़ल्लिल या मिल्क गैर लाजिम में क्या है, तरफ़ैन अपनी मिल्क को अपने मद्दे मुकाबिल से वापस ले सकते, कब तक, जब तक के ऐनैन बाकी हैं, लेकिन ऐनैन में से कोई एक चीज भी अगर तलफ हुई तो फिर वापस नहीं ले सकते हैं। यह मिल्क मुतज़ल्लिल का तसव्वुर। तो इन्होंने कह दिया कि इबाहा, इसमें जो है इबाहा जो कहा गया है ना, उलमा ने कहा है कि क्या नाम है, तसर्रुफ, इबाहा तसर्रुफ है, तो इबाहा से मुराद क्या उलमा की, मिल्क मुतज़ल्लिल है। फिर से मैं कह रहा हूं, मुआतात उलमा ने फरमाया है, मुआतात कौन सा, क्या मफ़हूम रखता है अपने अंदर, इबाहा तसर्रुफ वाला। इबाहा से मुराद क्या है, इबाहा से मुराद उलमा की मिल्क मुतज़ल्लिल है, यानी मुआतात में मिल्क मुतज़ल्लिल लाज़िम आता है, ठीक है, मुहक्कक होता है, वजूद में आता है। वन्नहु यल्ज़मु बिज़ाहिबि अदरैन, अभी तक मिल्क मुतज़ल्लिल है, लेकिन बैनैन में से एक तलफ हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, हाँ जोर से बोलिए ना फैसला, जब इतना सही बोल रहे हैं तो मिल्क लाजिम बन जाता है, ठीक। वह कज़ालिका फी शरही अल क़वाइद, जो मुहक्किक सानी की क़वाइद अल्लामा पर शरह है और इरशाद के ऊपर जो उनकी तालीक़ है, जो हाशिया है, उसने इन्होंने इस चीज़ की तहकीक की है, इस चीज़ को और बेहतर तरीके से साबित किया है कि ला मज़ीद अलैह है, जिससे बेहतर तरीके से इसको बयान नहीं किया जा सकता था। इन खूब अच्छे तरीके से अपनी इन दोनों किताबों में मुहक्किक सानी ने ये बात साबित की, एक्सप्लेन किया इसका, जिसको मैंने दो लफ्ज़ों में आपके सामने पेश कर दिया। शेख अंसारी ने खुद मुहक्किक ने अपनी किताब में बहुत तफसील से उसको बयान किया है। लेकिन बाज़ुल मुआसिरीन, लेकिन बाज़ मुआसिरीन ने, बाज़ मुआसिरीन नहीं, साहिब जवाहिर ने, है ना, इन्होंने हाशिए पे देखा, देखिए आप साइड में हाशिया नहीं है, साइड में हाशिए में लिखा है साहिबुल तौजीह व साहिबुल जवाहिर अन्न महल निज़ा है मुआतात बिक़स्दिल इबाहा।
तो अभी जो कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया? सवाल था ना कि कौन सा मुआतात महल निज़ा है, तमलीक वाला या इबादत तसर्रुफ वाला? तो अभी तक क्या बात चल रही थी? तमलीक। अब आते हैं, फरमाते हैं कि साहिब जवाहिर कि नहीं, महल निज़ा ये नहीं है, लाकिन बाज़ुल मुआसिरीन, बाज़ उलमा ने, हमारे मुआसिर उलमा ने, साहिब जवाहिर ने, लम्मस्तबअदा हाज़ल वजहा, ये मुहक़्क़िक़ सानी की जो बात थी ना, जिस तरीके से हमने तौजीह की है, इस वजह को बईद जाना है, मिल्क मुतज़ल्ज़िल वाली बात को क्या है? बईद अनिल हक़ जाना है, लिहाजा इल्तजा, लिहाजा मुल्तजी हुए वो, किस बात की तरफ मुल्तजी हुए? इल्तिजा की, किस बात को उन्होंने पेश करने की कोशिश की, है ना? इला जाल महल निज़ा हियल मुअत्ताद अल मक़सूद बिहा मुजर्रद इबाहा, कि महल निज़ा वो वाला इबाहा नहीं है जिसमें तमलीक का मफ़हूम होता है, सॉरी, महल निज़ा वो वाला मुअत्ताद नहीं है जिसमें तमलीक का मफ़हूम होता है, वो वाला मुअत्ताद महल निज़ा है जिसमें जी खुद उसी को महल निज़ा बना दिया है। ठीक है, महल निज़ा जो वही है कि इबादत तसर्रुफ हो पाता है, ये जो मुआताद इबादत तसर्रुफ हो रहा है ये सही है कि नहीं है, इसको महल निज़ा बना दिया है। इसको आप लोग क्या समझते हैं? क्या साहिब जवाहिर की बात आप लोग सही लग रही है कि महल निज़ा ये है, होना चाहिए झगड़ा इसमें? आप लोग फुक़हा हैं माशाअल्लाह, बताइए आप लोग नज़र में झगड़ा होना चाहिए इस मैटर को लेकर के, है? क्या फरमा रहे हैं? महल निज़ा ये चीज़ होनी चाहिए कि मुआतात में हम इसको आपके लिए मुबाह करार दें, आप हमारे लिए इसको मुबाह करार दें, इबादत तसर्रुफ महल निज़ा होना चाहिए। रज़ायत के बाद तो खुद आ जाता है तमलीक का मामला। इन्होंने रज़ायत को मेयार बनाया, मुफ्ती इज्तिहाद किया उन्होंने, क्योंकि रज़ायत तरफ़ा ने लिहाजा वहाँ आ गया। आप लोग क्या कहते हैं, साथ हैं इनके? अरे आप लोग हाशिए पे जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि आप लोग के साथ है कि नहीं? अभी आप लोग सुकून इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल ये साहिब जवाहिर के मुकाबले में, साहिब जवाहिर ये फरमाते हैं कि मुआतात वो वाला झगड़े और निज़ा का शिकार है कि जो इबादत तसर्रुफ को समझाता है। ये फरमाते हैं नहीं, इबादत तसर्रुफ को जो मुवातात समझाता है उसमें झगड़ा क्यों होगा भाई? रज़ा, इनकी दलील ये है कि तरफ़ैन की रज़ायत है तो तसर्रुफ तो हो ही जाएगा, इबादत तसर्रुफ हो ही जाएगा। ठीक है, चाहे उन्वान बे उस पर सादिक ना आ पाए, बे लाजिम तो आप इनके साथ जा रहे हैं फिर मुफ्ती साहब के साथ मुफ्ती हसन अब्बास साहब के साथ। ठीक है, यही तो ये भी कह रहे हैं कि मिल्कियत पे झगड़ा है, तसर्रुफ पे झगड़ा नहीं है। चलिए, तो इन्होंने जो है चूंकि इस वजह को बईद जाना है साहिब जवाहिर ने, लिहाजा इस चीज़ पर मुल्तजी हुए कि महल निज़ा को करार दिया जाए, क्या महल निज़ा करार दिया जाए किस चीज़ को? उस मुआतात को कि जो इबादत तसर्रुफ को समझाता है। ठीक है, वरज्जहा बकाल वाहते फी कलामिहिम अला ज़ाहिर हल मुकाबिल लिल मिल्क, और इन्होंने कहा है कि नहीं, आप जो क्या बोलते हैं इबाहे वाली बात को जो है वो क्या नाम है हमल कर रहे थे मिल्क मुतज़ल्ज़िल पे। मौक़िफ़ साहब, मिल्क मुतज़ल्ज़िल पे हमल न कीजिए, उलमा ने जो इबाहे वाली बात की है इबाहे ही के मफ़हूम पर उसको बाकी रखिए। मतलब क्या हुआ? रज्जहा बका, हाँ, उन्होंने कहा कि उलमा ने जो इबाहा कहा ना, इबाहा की तौजीह मिल्क मुतज़ल्ज़िल मत कीजिए, इबाहा के माना में खत्म। हाँ, मिल्क के मुकाबिल में जो आता है, मिल्क के मुकाबिल में जो इबाहा आता है वो है मौरिद निज़ा। आप तौजीह कर रहे हैं कि इबाहे से मुराद जो है वो क्या नाम है ऐसा होगा वैसा होगा, ये असल में क्या नाम मुआतात जो है वो मिल्क मुतज़ल्ज़िल है। अगर तरफ़ैन जो वो में से कोई एक तलफ हो जाए तो लाजिम हो जाएगा, ये सब तौजीह करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मुहक़्क़िक़ सानी ने जो मिल्क मुतज़ल्ज़िल वाली तौजीह की थी, इबाहे के माना को बदल दिया था बक़ौल सादिक़ आबिदी साहब के कि इबाहे के माना को आप बदलिए नहीं, मिल्क मुतज़ल्ज़िल के माना मत कीजिए।
जो इबाहे का माना था उसी माना पर उलमा की मुराद को बाकी रखिए। तो अगर उसी माना में बाकी रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो महल निज़ा क्या बन जाएगा मौलाना? खुद इबाहा बन जाएगा। मुआतात जो बमाना इबाहे तसर्रुफ है ये महल निज़ा है कि ये सही है कि गलत है, फासिद है कि सही है। ठीक है। हाँ, वनज़्ज़ला मौरिदा, ये ज़ाहिरहा जो है ना, अला ज़ाहिरहा, हा की ज़मीर इबाहा की तरफ पलटाइएगा और ज़ाहिरहा के नीचे लिखिएगा मौसूफ, अल मुकाबिल लिल मिल्क के नीचे लिखिएगा सिफत। तब आप रिजवी साहब की बात सही होगी। अल मुकाबिल लिल मिल्क के नीचे लिखिएगा सिफत और ज़ाहिरहा नहीं, इबाहे का जाहिर जो है कौन सा इबाहा वाला ना, जो मिल्क के मुकाबले में हो, ऐसे बात सही होगी। खुलासा ये कि इबाहा को इबाहा ही के माना में कीजिए। आप जो मिल्क के मुतज़िल कर रहे थे ना, तो इबाहा मुसावी हो रहा था मिल्क के, जबकि यहाँ इबाहा से मुराद इबाहा मुसावी वाला नहीं है, इबाहा जो उसके मुकाबले में है मिल्क के। तो मोर्द निज़ा खुद इबाहा है, यानी वो मुआतात जो इबाहे के मफ़हूम को अपने अंदर रखता है वो मोर्द निज़ा है। फिर फरमाते हैं नज़्ज़ला मोर्द हुक्म क़ुदमा इला अस्हाबिल इबाहत अला हाज़ल वज्ह, और इन्होंने साहिब जवाहिर ने, बाज़ुल मुआसिरीन ने, उलमा है ना, क़ुदमा अस्हाब यानी कदीम उलमा ने जो लफ्ज़ इबाहा बोला है ना, उन्होंने जो हुक्म लगाया है, यहाँ इबाहे को इस वजह पर उन्होंने अमल किया। किस वजह पर अमल किया है? यानी वो इबाहा कि जिसका कज़ खुद मुतातियन ने किया है। मुतातियन जब हम आपसे मामला कर मुआदात कर रहे हैं ना, तो कज़ इबाहा कर रहे हैं ना, तो मोर्द निज़ा खुद ये वाला कज़, ये वाला है इबाहा जिसका हम आप कज़ कर रहे हैं, ये मोर्द निज़ा है। ठीक है। खुलासा ये कि दो बहस थी। पहली बहस ये थी कि मोर्द निज़ा तमलीक है, वो मुआतात कि जो नाजिर बे तमलीक हो, ये अक्सरियत का नज़रिया है और उसी की किसी तरीके से तोजी की थी मिल्क मुतज़िल के सारे से मुहक़्क़िक़ ने। दूसरा नज़रिया है कि मोर्द निज़ा जो है वो तमलीक वाला मुआतात नहीं है, बल्कि वो मुआतात कि जो इबाहा तसर्रुफ़ का माना अपने अंदर छुपा है। ये किसने पेश किया है? साहिब जवाहिर ने। ठीक है। व ताना अला मन जअला महल निज़ा फिल मुआतात बिक़स्द तमलीक, न सिर्फ ये कि साहिब जवाहिर ने ये फरमाया है कि महल निज़ा वो मुआतात है जो नाजिर बे इबाहा हो, बल्कि इससे बढ़ के दो कदम आगे चल करके उन लोगों को तान का शिकार बनाया है, उन लोगों पे हमला किया है इन्होंने, साहिब जवाहिर ने, कि जो लोग ये कहते हैं कि वो वाला मुआतात महल निज़ा है जो नाजिर बे तमलीक हो, उनमें हमला किया उन्होंने। हाँ, और नहीं अभी शेख साहब दिफा करेंगे आकर के इनका, घबराइए नहीं आप। ठीक है। कायलन, इस तरीके से, इस हालत में उन्होंने फरमाया, कायलन यानी हाल है ये साहिब जवाहिर के लिए, इस हालत में उन्होंने फरमाया कि इन्नल कौल बिल इबाहतिल खालियत अनिल मिल्क मा क़स्दिल मुतातियन मिम मा क़स्दिल मिल्क, वो मैंने जो लिखा था वही पढ़ दिया, मा क़स्दिल मुतातियन अल मिल्का होगा मेरी इबारत के लिहाज से, मैंने वो हाशिया अपनी तरफ से लगा दिया था। और जब मुतातियन नहीं पढ़ेंगे तो क़स्दिल मिल्की हो जाएगा, ये मुज़ाफ़िले हो जाएगा। हम मुतातियन पढ़ देंगे तो मिल्का जो है वो मफूल हो जाएगा कस्द का। मा क़स्दिल मिल्के मिम्मा ला युनसबु इला साहिर तलबा, ये फज़ल आज़िम ला साहब को बनाए। अरे साहिब जवाहिर साहब जरा सा आप देख तो लेते कि सिवा इस मैदान में अकेले आप हैं दावेदार। इन्होंने कहा है कि तमलीक वाला नजरिया जो है ना, कि ये वो चीज जो महल निज़ा है वो वाला मुआतात है कि जो नाजिर बे तमलीक हो, ये वो चीज है कि जिसकी तालिब इल्मों की तरफ भी निस्बत नहीं दी जा सकती, बड़े उलमा की तरफ।
हुजूर मैदान बोलते बोलते आप मुझे जोश में आ गए, ये नहीं देख रहे कि इस फील्ड में अकेले आप हैं, आपके साथ सब छोड़े हुए हैं, चाहे आजिम हो चाहे साकी हो, कोई नहीं है। इस तरीके से उन्होंने हमला कर दिया। देखना साहब रिवायत ने क्या कहा कि ये वाली निस्बत जो है वो किसी तरफ नहीं दी जा सकती है। मुफ्ती साहब ने कौन सा नजरिया दिया था? मुफ्ती साहब के नजरिए को ही तो उन्होंने कहा है कि बच्चे 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 ये नहीं कह सकते, ठीक है, कोई नहीं कह सकता ये, ठीक है, भले इंसाफ। लेकिन आकर के शेख अंसारी दिफा कर रहे हैं मुफ्ती साहब का। वो कहते हैं सादिक़ैन आपकी तस्दीक कर रहे हैं, दोनों आपके दिफा में उतर गए मैदान में। देख लीजिए आप, महबूब हैं मौलाना, मजाक करने से क्या होता है इन लोगों के, महबूब हैं आप यहाँ। खाली एक आदमी आपका मुखालिफ है पूरे क्लास में, मुसलसन को होने लगा है। नहीं तो मुझे मालूम है अब जिशान साहब की कदेबा करने लगे। जिशान साहब कभी भी किसी के अगेंस्ट उतर सकते हैं, कभी जैसे हालात हो, कभी भी किसी के अगेंस्ट उतर सकते हैं। जबान मुखालिफत में जाती है मगर दिल साथ में होता है, साथ में होता है इनका, लेकिन कभी उतर सकता है। खैर, तो अब शेख अंसारी दिफा फरमा रहे हैं, कहते हैं कि वल इंसान, ये इनके खिलाफ बोल, दिफा आपका मतलब इन दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। इन दोनों के दो शख्सियतें गुजरी हैं ना, मौक़िफ़ सानी और साहिब जवाहिर, इन दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं शेख अंसारी। असल मैटर ज़हन में रहे, फिर मिला रहा हूँ, मुआतात का दो मफ़हूम था। मुआतात वो जो इबादत तसर्रुफ़ को समझाए, मुआतात जो इबादत तसर्रुफ़ के साथ साथ किसी को समझाए, मिल्कियत को समझाए। महल निज़ा कौन सा मुआतात है? जो उलमा ने कहा मुआतात सही है, मुआतात सही नहीं है, फासिद है, गलत है, अच्छा है, बुरा, ये महल निज़ा जो है, जिसको बाज़ उलमा कहते हैं सही है, बाज़ गलत। क्यों कहते हैं? मुआतात के किस मफ़हूम को ज़हन में रख करके, आया इबादत तसर्रुफ़ वाले को या तबलीग वाले को? मुहक्किक़ सानी ने फरमाया कि महल निज़ा वो इबाहा है कि जिसमें तबलीग का मफ़हूम हो। इन्होंने आकर फरमाया कि नहीं, आप तबलीग की तौजीह क्यों कर रहे हैं, तबलीग की तरफ क्यों ले जा रहे हैं इसको मुल्क मुतज़ल्लिल कह करके, बल्कि वही वाला मुआतात महल निज़ा है कि जिसमें मुआतियतैन जो है वो क्या करें, इबादत तसर्रुफ़ का कस्द करें, ये महल निज़ा है। ये क्या फरमाते हैं? वल इंसाफ अन्ना मर्तकबहुल मुहक्किक़ सानी, इंसाफ ये है कि कौले मिल्क मुतज़ल्जिल जो है तौजीह इबाहा के सिलसिले से ये सही नहीं है। मुहक्किक़ सानी जिस चीज़ के मुर्तकिब हुए हैं, किस चीज़ मुर्तकिब हुए हैं? मिल्क मुतज़ल्जिल वाले कौल के कायल बन गए हैं, जो ये तौजीह इबाहा बिल मिल्क मुतज़ल्जिल, इबाहा की तौजीह उन्होंने फरमाई मिल्क मुतज़ल्जिल के जरिए से, ठीक है, इस चीज़ का शिकार हो गए हैं वो। ये बईदुन फिल गायत अन मसाक कलिमातुल उलमा, सियाह के कलाम उलमा से बहुत दूर की बात कह दी है मुहक्किक़ साहब ने। जैसे शेख तूसी मफसूद में, अल खिलाफ में, अल्लामा हिल्ली सरायर में, इब्न ज़ोहरा गुनिया में, हलबी काफ़ी में, अल्लामा तस्किरा में और गैर तस्किरा में, इन सब ने जो कुछ बातें कही हैं इसके खिलाफ जा रही है इनकी बात, मुहक्किक़ सानी की बात। बल कलिमात बाज़िहिम सरीहतुन फी अदमिल मिल्क, बल्कि बाज़ उलमा इनमें से जो है वो न सिर्फ ये कि उनका जाहिर ये है कि मिल्क मुतज़ल्लिल मुराद नहीं लिया है, बल्कि सराहतन मुहक्किक़ सानी ने जो बात की उसकी मुखालिफत भी उनकी इबारत में छुपी हुई है। कमस तारीफ इंशाअल्लाह आगे आप पढ़ेंगे इस बहस को, जब मुआतात गुफ्तगू और आगे बढ़ेगी। इल्ला अन्ना जाला, ये तो होगी बात मुहक्किक़ सानी की। मुहक्किक़ सानी आपने जो मिल्क मुतज़ल्लिल की बात कही है कि ये जो हम मुआतात कर रहे हैं ये मिल्क मुतज़ल्लिल के मंजिलत में है, ये गलत है। चुपचाप ये बस मानिए कि ये इबादत तसर्रुफ़ कर रहे हैं हम दोनों, बस इबादत तसर्रुफ़ हो रहा है हमारी समझ से। ये मिल्क मुतज़ल्लिल वाली बात सही तमलीक नहीं आ रही है, कतन तमलीक नहीं आ रही है, हत्ता मिल्क मुतज़ल्लिल के तौर पर तमलीक नहीं आ रही है, क्योंकि बाज़ उलमा ने तसरीह की है और अक्सर उलमा की इबारत से ज़ाहिर इसके खिलाफ है जो आप फरमा रहे हैं। अब आई उनकी बात, इल्ला अन्ना, अच्छा ठीक है, जब तमलीक नहीं तो इबाहे वाले मान लिए, इबाहा मोरद निज़ा है, हाँ ये तो उससे बदतर है। इल्ला अन्ना जअला महल निज़ा मा इज़ा क़ुसिदल इबाहतु दून तमलीक, अब आदमी नो महल निज़ा मुआतात को
इबाह तसर्रुफ वाले माना के साथ करार देना ये उससे भी ज्यादा बईद है ना। यानी इसका बोध कलाम मुहक्किक सानी से ज्यादा है। बल ला यकादो, बल्कि नजदीक है ऐसा कि हम ये दावा कर सकें फी कलामिन यूजदो कलामुन यूजदो फी कलाम अहदिन मिनहुम मा यक़बलुल हमल अला हाज़ल माना, बल्कि शायद कोई भी ऐसा ना हो कि जो इस बात को बोला हो कि जिसको हमल किया जा सके उस माना पर जिसको साहिबे जवाहिर ने पेश किया है ना। वलन कुलवलन कलिमातो जमातिन, हम सबसे पहले जमात के कलाम को, एक गिरोह के कलाम को आपके सामने पेश करें। मिमन ज़फ़रना अला कलिमातिहिम लियज़हरा मिन्हु बुअद तंज़ील अल-बात अला मिल्क मुतज़लज़िल कमा सनाउल मौक़िल करकी व अबादियत जालिम अहलिल कलाम फ़ी कलिमात क़ुदमाइना अल-आलाम मालो कसर मुताअतिन मुजरद इबादत तसर्रुफ़ात दून तमलीक फ़नक़ुल व बिल्लाहि तौफ़ीक़। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर दोनों कलामों की अबादियत को पेश करेंगे। पहले ये पेश करेंगे कि जो मौक़िफ़ सानी ने मुतज़लज़िल वाली बात कही है वो गलत है, फिर ये पेश करेंगे कि जो महल निज़ा को इबाह तसर्रुफ़ वाले मुआदात को करार दिया जाए ये गलत है। दोनों में इंशाअल्लाह आगे आगे धीरे धीरे आपके सामने पेश करेंगे। काला फिल खिलाफ से इंशाअल्लाह छुट्टी के बाद यानी 10 दिन के बाद इंशाअल्लाह शुरू होगा। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।